اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندزن، اور پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ الحمدللہ ہم یہ ثابت کر چکے ہیں کہ ان کا ایک سنگٹھن ہے، سائنس کا کوئی میٹر نہیں ہے، ان سے سائنس کا خالی نام لے رہے ہیں اور سائنس کے اوپر جھوٹی جھوٹی باتیں باندھ رہے ہیں۔ ان کا ایک سنگٹھن ہے جس کے دوارا یہ کام کرتے ہیں، جو ان کو فنڈ کرتا ہے، پیسے دیتا ہے، جو ان کو لیڈ کرتا ہے۔ بس یہ اپنے دین اور دنیا کو اسی میں غرق کرے ہوئے ہیں۔ تو آج الحمدللہ ہم یہ ثابت کریں گے کہ جو ہمارے پیارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، کیا وہ اللہ تبارک و تعالی عز و جل کے سچے رسول ہیں؟ کیا واقعی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں؟ تو آئیے اس پر بات کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ کہہ دیں کہ یہ سائنس والے جو ہیں، یہ جو سائنس کا نام لیے گھوم رہے ہیں، سائنس کی بھی توہین ہے ان کا نام لینے سے۔ یہ ایکس مسلم وغیرہ جو بھی ہے، میں کھل کے ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، خالی ایکس مسلم اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ سمجھ جائے کہ یہ کون سا سنگٹھن ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلوار کے زور پہ دین پھیلایا ہے، تلوار کے زور پہ، بھائیو تلوار کے زور پہ۔ اب آ جاتے ہیں سائنس کی طرف۔ کیا سائنس اس بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہے کہ دین تلوار کے زور پہ پھیلایا جا سکے؟ سائنس کیا کہتی ہے اس بارے میں؟ تو سائنس تو کہتی ہے جو کام خلاف عقل ہو وہ پاسبل ہی نہیں ہے، یعنی جسے عقل ہی تسلیم نہ کر سکے، عقل ہی نہ درست مانے، وہ کام بالکل بھی مانا نہیں جائے گا، درست نہیں ہے۔ تو اب آئیے دیکھتے ہیں کیا اسلام تلوار زور سے پھیلا تھا؟ تو اب آ جائیے۔ اب میں آپ کے سامنے ایک بہترین نظارہ کھڑا کرتا ہوں۔ مان لو چاروں طرف سپاہی سپاہی، بیچ میں تنہا آپ، اور وہ سارے کی سارے آپ کی جان لینا چاہتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں ایک تلوار دے دی گئی، پھر اس کے بعد میں آپ نے کیا کیا؟ اس تلوار سے ان سب کو قتل کر دیا، اور ان کو قتل کر کے رہے بچے ان سے اپنے آپ کا کلمہ پڑھوا لیا۔ یہ کیا آپ نے، یہ پھیل گیا دین اسلام تلوار کے زور پہ۔ اب بتاؤ سائنس اس بات کو ماننے کو تیار ہے کہ ایک تنہا آدمی جس کے ہاتھ میں صرف ایک چھوٹی سی تلوار ہے، وہ سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کو قتل بھی کر کے اور ان سے اپنا کلمہ بھی پڑھوا لے؟ ماننے کو تیار ہے؟ انسان کا نہیں، گدھے کا بچہ بھی نہیں مانے گا۔ ذرا ایکسپلین کریے، کتنی بڑی بے وقوفی میں لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اور ہمارے اسلامی بھائی یا نام نہاد اسلامی بھائی جو خالی نام رکھے ہوئے مسلمانوں کا، وہ ان کو سننا بھی پسند کرتے ہیں۔ اتنی جہالت بھری باتیں یہ لوگ کرتے ہیں کہ دین کو تلوار سے پھیلایا گیا، اور ایسے حال میں کہ تنہا شخص ہو اور ہزاروں مارنے والے ہو، اور وہ تلوار کے زور سے گھر گھر جا کے کہہ رہے ہیں کہ تم سب کو میں قتل کر دوں گا اگر تم نے میرا کلمہ نہیں پڑھا۔ اور ان نے کلمہ پڑھ لیا سب نے، اور پھر وہ ان کے سچے عاشق رسول ڈر کی وجہ سے بن گئے۔ مطلب ہنسی آتی، مطلب کہاں سے آتے ہیں یہ لوگ؟ یہ سوچ، یہ بات سائنس کیا، سائنس کا اے بھی نہیں مانے گا اس بات کو کہ تلوار کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تنہا تھے، واحد اکیلے تھے، انہوں نے مشرکین مکہ میں جو بتوں کو پوجا کرتے تھے، ان لوگوں میں کھڑے ہو کر تلوار سے لوگوں کی گردنوں پہ تلواریں رکھی اور اپنے نام کا کلمہ پڑھوا لیا، اور وہ ان سے ڈر گئے، اور وہ سب ڈر کے مارے پڑھتے چلے گئے، جبکہ آپ کے بہت سے رشتہ دار خاندان والے بھی آپ کے خلاف تھے، اور بقایا مشرکین مکہ تو تمام مکہ بھر میں تھے ہی خلاف۔ اتنے سارے جنگجو طاقتور لوگوں کے سامنے آپ نے ایک چھوٹی سی تلوار سے ان سب کو ڈرا کے اور کلمہ پڑھوا لیا۔ یہ ہے ان ایکس مسلموں کی تھیوری۔ اب ان کو جاہل نہ کہو تو کیا کہو؟ یہ سائنس سے بھی ہٹ کر چل رہے ہیں۔ سائنس تو اس بات کو تسلیم ہی نہیں کر سکتی کہ ایک شخص تنہا تلوار لے کر اور لوگوں کو ڈرا کر اور دین قبول کروا لے۔ تو الحمدللہ آپ سمجھ ہی چکے ہوں گے اس بدترین بدبودار تھیوری کے بارے میں کہ اس ترکیب سے اسلام پھیلا ہے۔ تو الحمدللہ مجھے زیادہ وضاحت کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں کہ اسلام ہمارا تلوار کے زور سے نہیں پھیلا ہے، یہ آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے الحمدللہ۔
दीन इस्लाम हमारा फैला कैसे है। आज हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह ये बताएंगे। जब हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया था, तो जब हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत किया था, यानी कि अच्छा एक चीज़ और समझिए कि जो सच्चा खुदा है वो तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह साइंस के एतबार से साबित किया कि अल्लाह है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने साइंस के एतबार से ये भी साबित किया कि ये कुरान अल्लाह ही का है। तो अब वो सच्चा खुदा अपना ये सच्चा कलाम जिसके ऊपर नाजिल करे, क्या वो झूठा हो सकता है? नहीं, एक्सप्लेन करिए। साइंस भी इस बात का इनकार कर देगी कि एक सच्चा मतलब एक सच्चा खुदा और जिसको अपनी सच्ची बात कहे तो उसको वो सच्ची बात पहुंचे और वो झूठा हो ही नहीं सकता। तो साइंस भी इस बात का इनकार कर देगी। तो एक सच्चा खुदा जिसका कलाम भी सच्चा है, अब वो कलाम जिस पर नाजिल हुआ, जिसको उसने दिया, वो झूठा हो सकता है? हरगिज़ नहीं। इसको तो अक्ल शक्ल कुछ भी तस्लीम नहीं करेगी। बहरहाल ये एक्स फैक्स मुस्लिम इसको तस्लीम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन्हें पैसा मिल रहा है। जब तक इनकी आंखें बंद नहीं हो रही, खुलेंगी जब कब्र में तब जानेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह बताने जा रहे हैं कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब अल्लाह का पैगाम आया था, और पहली ही वही जब आई थी, जब आपने पहला ही ऐलान किया था, तो कैसे किया था। सही बुखारी किताबुल अंबिया हदीस नंबर 3226, सही मुस्लिम किताबुल ईमान हदीस नंबर 233, सही बुखारी हदीस नंबर 1, सही मुस्लिम हदीस नंबर 231, सही बुखारी हदीस नंबर 4, सही बुखारी हदीस नंबर 3। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ऐलान जो आपने ऐलान किया था, हम निचोड़ आपको बताएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह इन सारी हदीसों में आपको ये मिल जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नबूवत का ऐलान मकाम हिरा पर किया। जब उन्होंने पहली बार अपने नबूवत का इजहार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ऐ कुरैश वालो सुनो। अब सुने, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ तलवार लेकर खड़े नहीं हुए। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे ही खड़े हुए तन्हा, और फरमाया, क्या फरमाया? ऐ कुरैश वालो सुनो, अल्लाह ने मेरे जरिए तुम्हारे लिए हिदायत भेजी है। क्या फरमाया? ये नहीं फरमाया कि मेरे पास एक तोप रखी है और मैं आपके ऊपर उसको चला दूंगा अगर आपने मेरी बात नहीं मानी। क्या फरमाया? कि अल्लाह ने मेरे जरिए आप लोगों के लिए हिदायत भेजी है। कोई भी नबी नहीं था जो अपनी कौम को डर और खौफ का पैगाम नहीं देता हो। नबी अलैहिस्सलाम ऐसे नहीं गुजरे जो अपनी कौम को डर और खौफ का पैगाम न देते हो। मैं भी तुम्हें डर और खौफ का पैगाम देने आया हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? मैं भी तुम्हें डर और खौफ का पैगाम सुनाने आया हूँ। अपने रब का पैगाम सुनाने आए थे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहा, मुझे जो वही मिलती है वो वही भी तुम्हारे पास आती है, और मेरी नबूवत आखिरी नबूवत है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी मुझे वही मिलती है वो तुम्हारे भी पास पहुंचती है, और मेरी ही नबूवत आखिरी नबूवत है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए अल्लाह की वो वही उन लोगों तक पहुंचती है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे भेजा गया है तुम्हारे पास, और जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ वो सच है। क्या तुमने देखा है कभी मैं झूठ बोला हूँ? आहा, सुभान अल्लाह। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन लोगों में तबलीग कर रहे हैं उनसे ये नहीं कह रहे हैं क्या तुमने देखा नहीं है मेरे पास कितना असला है, ये नहीं कह रहे हैं। ओ जाहिल एक्स मुस्लिम, जरा शर्म करो, लोगों को गुमराह करना बंद करो। और मैं अपने उन भाइयों से ये कहना चाहूँगा जो जाहिलों की बातें सुनने लगते हैं, ज़रा इन हदीस शरीफ पर, इन हदीसों पर, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान पर, इन फरमान मुबारक पर, हदीस मुबारक पर गौर करो। क्या फरमाया? मुझे भेजा गया है तुम्हारे पास, और जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ
वो सच है, क्या तुमने कभी मुझे झूठ बोलते हुए देखा? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे ही पूछ रहे हैं, मुशरिकीन मक्का से, क्या तुमने मुझे कभी झूठ बोलते हुए देखा? अब ये बताओ, जो लोग खुद ही डरते हो तो वो लोग कभी ये मतलब उनसे कभी ये पूछा जाए, जिन्हें डराया जाता हो उनसे कभी ये पूछा जाएगा कि मुझे तुमने कभी झूठ बोलते हुए देखा? बल्कि ये कहा जाएगा खामोश रहो, सबके सब को बंदी बना लो, ये कहा जाएगा ना। या फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश अखलाक ना हो, अच्छे इंसान ना हो, तो भी ये बात नहीं रखी जा सकती। ये बात रखने की दलील ही ये है कि वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत ही ज़्यादा खुश अखलाक और बेहतरीन इंसान समझते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बाज़ के दावत नबूवत के वक्त कुरैश के लोगों को इकट्ठा किया था और ये भी कहा था, अगर मैं तुम्हें कह दूं कि पहाड़ी के पीछे एक फौज छुपी हुई है जो तुम पर हमला करेगी, तो क्या तुम मुझे सच्चा मानोगे? ओहो, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहीं आंखें खुल जाना चाहिए लोगों की। मतलब अपनी सच्चाई की गवाही मुशरिकीन मक्का से ले रहे हैं, जो आपके दुश्मन हैं उन्हीं से आप अपनी सच्चाई की गवाही ले रहे हैं। इससे पता चलता है कि आप कितने बड़े सादिक थे, कितने बड़े सच्चे, सबसे बढ़कर सच बोलने वाले थे। अब आइए सुनते हैं मुशरिकीन मक्का ने क्या कहा। उन्होंने जवाब दिया, हाँ 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 हाँ, हम तुम्हारे साथ सच्चाई ही मानेंगे, क्योंकि तुमने कभी झूठ नहीं बोला। सुभान अल्लाह। यानी कि ये मुशरिकीन मक्का इकरार कर रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी झूठ ही नहीं बोला। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तो सुनो, मैं तुम्हारे पास आखिरत का अजाब डराने आया हूँ। तो पता चला कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला खुतबा था, जो पहला ही पैगाम था, वो ऐसा पैगाम था कि जिसमें मुशरिकीन मक्का खुद तस्लीम कर रहे थे कि आप अगर ये भी कह दें कि पहाड़ी के पास कोई लश्कर है तो भी हम मान लेंगे, क्योंकि हमने कभी आपको झूठ बोलते हुए ही नहीं देखा। तो झूठ बोलते हुए नहीं देखा, यानी कि आपका अखलाक इतना मशहूर था कि आप हमेशा सच ही बोला करते थे, हमेशा सच बोला करते थे। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान है। तो पता चला कि ऐलान में तो कोई तलवार का जिक्र नहीं है, ऐलान में तो बल्कि वो खुद ही गवाही दे रहे हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच बोल रहे हैं। तो तलवार से नहीं फैला है दीन, हम बताते हैं कैसे फैला। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चलना ऐसा चलना था ना, कोई मुशरिकीन भी देख लिया करता था तो वो ईमान ले आया करता था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चलने मुबारक जैसा कोई चलता ही नहीं था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नज़र मुबारक उठाकर देखना था ना, वो देखना, वो एक नज़र मुबारक से देखने से सीने में ईमान पैवस्त हो जाता था, वो मोहब्बत पैदा हो जाती थी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई देखता ही नहीं था, उनके देखने मुबारक पर लोग ईमान लाते थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई मुस्कुराते हुए देख लिया करता था ना, तो बस मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुस्कुराहट पर ही लोग अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दिया करते थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो बात कर लिया करता था, मुशरिकीन मक्का कहा करते थे कि इनसे कोई कलाम ना करे, क्योंकि इनकी जो भी बातें सुनता है वो इनका दीवाना हो जाता है। मुशरिकीन मक्का का भी कभी तारीख पढ़ लो, किताबें छान लो, ढूंढ लो, मर जाओ, एक हदीस ऐसी नहीं मिलेगी कि मुशरिकीन मक्का ने कहा हो कि उनके पास ना जाना, वो तुम्हें तुम्हारी गर्दन पे तलवार रख के और तुमसे कलमा पढ़वा लेंगे। एक भी नहीं मिलेगी। क्या कहते थे कि उनकी बातें ना सुनना, क्योंकि जो उनकी बातें सुन लेता है वो उन्हीं का दीवाना हो जाता है। सुभान अल्लाह। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
की शान थी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुखियों के दर्द दूर कर दिया करते थे, लोगों के मुसीबतों में काम आया करते थे। उस वक्त कोई किसी के लिए मुसीबत में काम नहीं आता था, काम आना तो बड़ी दूर की बात थी, लोग खुद लोगों पे मुसीबत बन जाया करते थे। औरतों को घर से बेवा फेंक दिया जाता था, उन पे जुल्म किया जाता था, घरों में बंद कर दिया जाता था, और जो गुलाम थे उन पर ज़्यादती की जाती थी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो माँ को माँ का हक मिला, भाई को भाई का हक मिला, बहन को बहन का हक मिला। इससे पहले हुकूक की कोई बात नहीं थी। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात करने के लिए लोग तरसते थे। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ इतनी प्यारी आवाज़ थी, क्या कहूँ, कि लोग बस दीवाने हो जाया करते थे। लोगों ने इस्लाम कबूल किया, ऐसे इस्लाम फैला है, ऐसे दीन फैला है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक इतना रोशन था कि मुशरिकीन अपने घरों में मिसालें दिया करते थे कि इंसान हो तो उनके जैसा। ये तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसालें दिया करते थे लोग, और तुम जाहिलो कहते हो कि तलवार से फैला, और तुम्हारी ये बेहुदा गलीज बात मान भी कौन लेता है। और बताऊं इस्लाम कैसे फैला। और हाँ, एक चीज़ और कहते हैं ये लोग, कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई मौजिज़ा नहीं दिखाया था। माज़ल्लाह, अस्तग़फिरुल्लाह, कोई मौजिज़ा नहीं दिखाया मुशरिकीन मक्का को कि वो ईमान लाते। इतना बड़ा झूठ बोलते हैं ये फैक्स मुस्लिम, ये फेक मुस्लिम, कि कैसे भी करके ये अपना संगठन आगे करके और लोगों को गुमराह कर सके, और हदीस और कुरान से इतना दूर कर रहे हैं मुसलमानों को, ताकि उनसे दूर करके ये अपना संगठन का जो इनका बातिल हिसाब किताब है वो उसमें भर सकें। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये किस तरफ लोगों को ले जा रहे हैं। चलिए आइए, अल्हम्दुलिल्लाह हम कुरान शरीफ से एक मौजिज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपकी पेश नज़र कर देते हैं। कुरान शरीफ में सूरह 54 है और उसकी आयत नंबर 1 है, जिसका ज़िक्र हदीस शरीफ में भी मिल जाता है। हदीस शरीफ बुखारी शरीफ की 3638 नंबर में भी मिल जाएगा, बुखारी शरीफ ही की 870 में भी मिल जाएगा, बुखारी शरीफ ही की 7709 में भी मिल जाएगा, और जामे तिर्मिज़ी शरीफ की 2182 में भी मिल जाएगा, और जामे तिर्मिज़ी शरीफ की 3288 में भी मिल जाएगा। इसमें ज़िक्र मिलेगा आपको कि चांद के 2 टुकड़े हो गए, और लोग जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के 2 टुकड़े किए, और कुरान शरीफ में भी मिलेगा और इन सारी हदीस शरीफ में जो भी मैंने आपको रेफरेंस बताए हैं, फरमाया चांद के 2 टुकड़े करके लोगों से और गवाह रहो। मैं आपको डिटेल में बताता हूँ इंशाअल्लाह इन सारी हदीस शरीफ और वो आयत शरीफ का निचोड़। हज़रत वाला नूर मुजस्सम शाह बनी आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में अपनी नबूवत का पैगाम पेश कर रहे थे। उस वक्त मक्का के मुशरिकीन जो अल्लाह के सिवा और बुतों की इबादत किया करते थे, उनकी बातों को मंजूर करने की बजाय इनकार कर दिया करते, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों को कबूल करने की बजाय उनका इनकार कर दिया करते थे। उन्होंने हज़रत मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौजज़ा दिखाने की दरख्वास्त की, यानी मुशरिकीन मक्का ने कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मक्का शहर में अपनी नबूवत का ऐलान कर रहे थे, उस वक्त मुशरिकीन जो अल्लाह के सिवा और बुतों की इबादत किया करते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों का वो इनकार कर दिया करते थे। उन्होंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक मौजज़ा देखने के लिए कहा कि ताकि वो ये देख सके और ये समझ सकें कि आप अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला के सच्चे रसूल हैं। फिर एक रात
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने अल्लाह से दुआ की और अल्लाह के हुक्म से चांद दो हिस्सों में तकसीम हो गया। ये चांद के दो टुकड़े होने का वाकया मक्का के लोगों ने अपनी आंखों से देखा। इस वक्त कुछ लोग पहाड़ के उस पार और कुछ लोग पहाड़ के इस पार थे। अब ये वाकया तो उन लोगों ने देख लिया, जी हाँ, चांद के दो टुकड़े होने वाले वाकये के बारे में जब मक्का के मुशरिकीन ने सोचा कि शायद ये सिर्फ उनकी आंखों का धोखा हो और ये चांद के दो टुकड़े होने का वाकया वाकई में नहीं हुआ हो, इस पर उन्होंने ये फैसला किया कि मक्का के बाहर से आने वाले काफिलों से पूछा जाए कि वो जो काफिले हैं वो क्या कहते हैं, चांद के दो टुकड़े होते देखे हैं उन्होंने या नहीं। जब कुछ काफिले मक्का मुकर्रमा में वापस आए तो उनसे ये सवाल किया गया। काफिलों ने गवाही दी, यानी जब काफिले वहाँ आए तो काफिले वालों से जब सवाल पूछा गया तो काफिले वालों ने गवाही दी। उन्होंने भी अपनी रात को सफ़र में चांद के दो टुकड़े होते देखे थे। इस गवाही के यानी उन्होंने भी अपनी आंखों से रात में चांद के दो टुकड़े होते देखे थे। इस गवाही ने ये तस्दीक की कि ये वाकई सिर्फ मक्का तक महदूद नहीं था, बल्कि चांद हकीकत में दो हिस्सों में बट गया था। चांद की हकीकत में दो हिस्सों में तकसीम होना लोगों ने देखा था, दूर दूर तक लोगों ने मुशाहिदा किया था। तो अब इनकी ये बातिल ताबील जो कुरान शरीफ से और हदीस शरीफ से दोनों से रद्द हो जाती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चांद के टुकड़े किए थे, यानी वो ये कहते कोई मौजज़ा नहीं दिखाया, तो ये तो कुरान शरीफ और अहादीस शरीफ, कितनी हदीस शरीफ के हमने आपको नंबर बताया, रेफरेंस बताए कि ये वाक़या हुआ और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से मौजज़ात मक्के वालों को दिखाए। तो उनमें से जो ईमान लाए सो लाए और जो इनको देखने के बावजूद इन एक्स मुस्लिमों की तरह फिरे वो फिरे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने साबित किया कुरान शरीफ से, हमने साइंस के एतबार से साबित किया कि अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल्ला का वजूद है, एग्जिस्ट करता है, और अल्लाह तबारक व तआला का कुरान शरीफ भी हमने साइंस से साबित किया कि एग्जिस्ट करता है, ये अल्लाह ही का कलाम है। और हमने अल्हम्दुलिल्लाह ये भी साबित किया साइंस के एतबार से, यानी साइंस की मतलब मंतिकी दलीलों से, कि अब सच्चा खुदा सच्चे कलाम को झूठे पे तो उतार नहीं सकता, तो लिहाजा मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सच्चे ही हैं क्योंकि उन पे कुरान नाजिल हुआ। और रही बात तलवार से दीन फैलाने वाली, तो वो भी आप जान चुके हैं उसकी क्या हकीकत है। और रही बात मोजज़ा दिखाने वाली, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने आपको बता दिया है कि उन्होंने क्या मोजज़ा दिखाया। और रही बात इन एक्स मुस्लिमीन की, इन एक्स मुस्लिमीन से ये कह दिया जाए कि भाई जाओ अपना चूरन कहीं और जाके बेचो, ये आशिक़ रसूल हैं, यहाँ गुजारा नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। क्योंकि हम तो खुले आम और खुले अल्फाजों में कहते हैं जो नबी का नहीं वो हमारा नहीं। तो ये अपना संगठन अपने लोगों में जाके चलाओ। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने भाइयों से कहना चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें और इन बदतरीन लोगों की बदतरीन चालों से बचें, और बल्कि इनकी बातें भी ना सुनें। अल्हम्दुलिल्लाह हम ऐसी ही और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे इंशाअल्लाह। आप कमेंट करिए अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसी तरकीब की वीडियो चाहिए, नहीं तो लाइक और शेयर तो ज़रूर ही करिए और हमें अपनी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मग़फ़िरतुहू।